So hi guys, my name is Vikas Singh and I'm a technical trainer at Relica Services for different technologies like Java, Python, machine learning, data science, and also full stack technologies. So I'm especially for the Python programming language, and I'm here to start a series on Python. You can say Python is the most prominent, most powerful, and most well-featured programming language nowadays. And data science and machine learning, you can say artificial intelligence, development of artificial intelligence is most fascinating and fast-moving field in IT sector. And Python is playing a prominent and important and significant role in data science, in artificial intelligence. So you can say Python is most important nowadays in the comparison of other programming languages. And so in this series, we will cover all the related things to the Python that are relevant to the data science and machine learning. But it's a part of core Python, so you can say it is also relevant for all the fields. Whenever you are going to start with the Python, we will use a Python language like software development, web development, Android development. Yeah, you can say anywhere you are going to start with the Python, you can consider this part, this series as a core Python learning. So it's important for you, for all students, for all candidates that are searching, that are looking for the Python language. So you have to cover all the things. So here you can see the topics to be covered in this video. Uh, we will start from the zero, from the beginning. We will understand first of all what is programming language, historical evolution of programming, and machine dependency, platform dependency. All the things are basics in you can say in the programming field, in programming sector you can say. An exposure about C, C++, and Java languages, and also why Python is so popular, so important, you can say nowadays in different sectors in IT. So we will see all the things. First of all, we will understand what is Python. So first of all, we will see what is machine language. हम लोग machine language पे initially programming करते थे. जब आप बात करें बहुत स्टार्टिंग की 1949, 1940 की, जब हमारे पास स्टार्टिंग हुई थी टेक्नोलॉजी की, जब हम लोग मशीन्स को यूज करना, कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर रहे थे, एट दैट टाइम वी वर यूजिंग मशीन लैंग्वेज. हम लोग कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को यूज कर रहे थे फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो आप कंप्यूटर में या सिस्टम्स में जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स, उनका डेवलपमेंट हम मशीन लैंग्वेज से कर रहे थे. मशीन लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है. और ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही फेवरेबल लैंग्वेज है. जब आप मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत ही फास्ट होता है. मशीन यानी कंप्यूटर उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर फास्ट होता है. तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में इसी को यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे. बट आफ्टर यूजिंग ऑफ द मशीन लैंग्वेज वी हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स. लाइक मशीन लैंग्वेज के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है. अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो उसको लिखना, समझना, उसमें एरर्स फाइंड आउट करना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और बहुत मुश्किल होता है. तो इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लैंग्वेज नॉलेज, लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज. मींस एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर इन मशीन लैंग्वेज, you have to learn a lot of things related to machine language, related to electronics or hardware or software. आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा इन सारी चीजों को कवर करने के बाद भी अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग कर भी लेते हैं तो फाइनली एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, दैट इज मशीन डिपेंडेंसी. एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ पर्टिकुलर सिस्टम पे ही यूज कर सकते हो, किसी दूसरे सिस्टम पे उसको यूज नहीं किया जा सकता है. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंसी. और अपने आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज के बाद अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर भी लेते हैं तो हम उसे सिर्फ एक ही सिस्टम पे चला पाते हैं. इस वजह से नई नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट चलता रहा. तो नेक्स्ट स्टेज में अगर आप बात करें तो हमारे पास कुछ नई लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई 1949 के आसपास, फोर्ट्रान, पास्कल, सिम्बल 67, वी लैंग्वेज, बीसीपीएल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई. ये सारी लैंग्वेजेस पर्पस ओरिएंटेड थी. पर्पस ओरिएंटेड का मतलब होता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है. ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में इनको यूज कर सकते हो. जैसे कि मान लो फोर्ट्रान है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज हो रही है, या कोबोल है तो मान लो उसको हम बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, या बी लैंग्वेज है तो हम कंपाइलर डिजाइन करने के लिए बना रहे हैं. लेकिन उससे हम दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते. तो इनका एक डोमेन स्पेसिफाइड होता है, इसलिए इनका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है. तो हमें
और नई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेप में 1972 में हमारे पास पहली लैंग्वेज आई सी लैंग्वेज, जो मल्टीपर्पज थी, यानी कि ऐसी लैंग्वेज हमने बना ली और हमने इन द सेंस डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था एटी बेल लैबोरेटरी यूएसए में। और सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज हुई क्योंकि ये पहली लैंग्वेज थी जिसका यूज करके आप अलग अलग फील्ड के सॉफ्टवेयर बना सकते थे और बहुत सिंपल थी और फास्ट भी थी। अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत बेटर लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो इसको धीरे धीरे करके सभी फील्ड में सभी सेक्टर में यूज किया जाने लगा फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। और इसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस डेवलप हुई है ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज ने सी लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट्स को इनहेरिट किया है, यूज किया है, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा सा एडवांस बनाया है, उसी में उसके कॉन्सेप्ट जोड़े हैं और नई नई लैंग्वेजेस डेवलप हुई। तो इस वजह से सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है क्योंकि सबने सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है, उसी को आगे बढ़ाया हुआ है। तो अगर आप बात करें कि हमारे पास जो पर्पस ओरिएंटेशन था वो तो कंप्लीट हो गया कि हम मल्टीपर्पस लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मशीन डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका था। आप एक सॉफ्टवेयर बना के आप मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल सिस्टम पे यूज कर पा रहे थे। लेकिन एक नई प्रॉब्लम आई, वो नई प्रॉब्लम थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन नहीं कर सकते। That means if you are making a software on Windows, you can run only this software in a Windows only. You cannot run it in Linux or Unix or other any operating system. इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो दूसरे पे वो नहीं चलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से नई नई लैंग्वेज का, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट रेगुलरली चल रहा था। नई नई लैंग्वेज मार्केट में आ रही थी, डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस वर देयर। उस टाइम पे बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई। तो इसके बाद फाइनली 1990 में आप कह सकते हैं कि एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं जावा। 1990-91 के आसपास डेवलप हुई, जिसे जेम्स वाटसन ने डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम में। जावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस में से एक। और ये पहली ऐसी लैंग्वेज थी जो आप कह सकते हो कि इसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बनाया। लेकिन मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक सिस्टम पे बनेगा तो कहीं पे भी रन कर सकते हो। राइट वंस रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट लेकर के आई कि एक बार आप प्रोग्राम को बनाओ और कहीं भी रन करो, चाहे वो दूसरा सिस्टम हो और चाहे वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं पे भी रन कर सकते एनीवेयर। तो जावा ने कॉन्सेप्ट दिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, जिसे कहते हैं कि आप एक बार प्रोग्राम को बनाओ और कहीं पे भी रन कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लैंग्वेजेस ने यूज किया, पाइथन ने भी इसको यूज किया। तो पाइथन में भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, बट ये लिया गया था जावा से। और इनको जनरल पर्पस लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। जनरल पर्पस लैंग्वेजेस बड़ी लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनका यूज हम लोग ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में कर रहे हैं। हर एक डेवलपमेंट की फील्ड, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, और चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, फिर चाहे वो मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स बनाने की बात हो, हर फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इनको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको जनरल पर्पस कहते हैं, कि जीपीएल लैंग्वेजेस कहलाते हैं। तो 2010 तक जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी। 15 तक भी जावा को हम बहुत अच्छे से समझ रहे थे और बहुत ज्यादा यूज हो रही थी। लेकिन आज की डेट में जावा और पाइथन के कंपैरिजन में पाइथन ज्यादा पॉपुलर हो गई है, पाइथन ज्यादा यूज भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जावा मार्केट से एकदम गायब हो गई है, अभी भी यूज हो रही है। तो जावा के डेवलपर्स हैं, जावा को टेक ओवर किया हुआ ओरेकल कंपनी ने इस समय। तो इस समय प्रेजेंट जावा जो है वो ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो अभी भी जावा बहुत पॉपुलर है और बहुत सारी फील्ड में वो यूज हो रही है। बट सबसे ज्यादा जो इस समय बज है, बूम है, वो है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का। और उसमें पाइथन लैंग्वेज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन के क्या फीचर्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ 5-10 सालों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पाइथन ने जावा जैसी लैंग्वेज को डिफीट किया। क्योंकि जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, एक टाइम पे कहा जाता था जावा इज एवरीवेयर, इतना ज्यादा पॉपुलर थी, इतना ज्यादा स्ट्रांग थी, सब जगह पे जावा थी। लेकिन अभी जावा को डिफीट करना, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो पाइथन के पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से इसने जावा को डिफीट किया है। इसका एक बहुत बड़ा फीचर है इसकी सिंपलिसिटी। पाइथन को एक सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। सिंपल इन द सेंस ऐसा नहीं है इसका मतलब कि ये सिंपल है तो इसमें फीचर्स नहीं है। फीचर्ड लैंग्वेज है, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो जावा में थे, अदर लैंग्वेजेस में थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इस वजह से ये पॉपुलर है।
तो सिंप्लिसिटी का मतलब है कि आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस में लिख पाते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल लैंग्वेज कहते हैं। और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से डेटा साइंस और एआई की फील्ड में बहुत ज्यादा पाइथन आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और पाइथन जो है अपनी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी की वजह से जानी जाती है। बहुत रिच लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी। डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो चुका है पाइथन में कि इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंग्वेज कह सकते हो आप इसे, पाइथन है। सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क इसमें किसी में है तो वो पाइथन है। ओपन सोर्स है, सोर्स कोड इसका आपको ओपनली मिल जाता है। आप सोर्स कोड में चेंजेस करके कस्टमाइज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कुछ नई चीजें डेवलप करके आप पाइथन कम्युनिटी को इसे जो एक्चुअल कम्युनिटी इसको हैंडल करती है उसे आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नई लाइब्रेरी और नया फ्रेमवर्क या नया कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो आप चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके कंट्रीब्यूशन को आपके नाम से ऐड भी कर लिया जाता है। मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। मल्टी पैराडाइम का मतलब होता है ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग की सभी अप्रोच फॉलो करती है, चाहे वो प्रोसीजर ओरिएंटेड हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, चाहे ऑब्जेक्ट बेस्ड हो, सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। जनरल पर्पस तो ये है ही, मैंने अभी डिस्कस किया। जावा की तरह ये भी ऑलमोस्ट सभी फील्ड में यूज हो रही है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी पोर्टेबल है। इसका भी प्रोग्राम आप एक बार डिजाइन करके डेवलप करके कहीं भी चाहो रन कर सकते हो। इंटरप्रेटेड है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर को यूज करती है इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है कि ये बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि इंटरप्रेटर को यूज करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक डायनामिकली कास्ट लैंग्वेज है। मतलब इसकी टाइप कास्टिंग जो है, टाइपिंग जो डेटा टाइप्स है, डेटा को हैंडलिंग करने का तरीका है वो डायनामिक है। तो डायनामिकली टाइप की वजह से, डायनामिकली कास्टिंग की वजह से इसको थोड़ा सा स्लो लैंग्वेज कहा जाता है। बट डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, लैंग्वेजेस को डेवलप किया जा रहा है और इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो अगर आप कंपेयर करो पिछले साल 2 साल का और आज की डेट का, तो आज की डेट में पाइथन प्रीवियस कंपैरिजन से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में और अपने आप को फास्ट करेंगे, बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है ड्रॉबैक। बट अभी राइट नाउ ये ड्रॉबैक है। तो पाइथन को जैसा कि मैंने बताया 1991 में जावा के पैरेलल इसको भी साइमल्टेनियसली डेवलप किया गया था। ईडो वन रॉसन जो नीदरलैंड के हैं, इन्होंने डेवलप किया था इसे। और आज की डेट में कैलिफोर्निया में एक ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएफ के नाम से, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। वहां से पाइथन को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है और इसकी वेबसाइट है, आप जाके इसमें विजिट कर सकते हो। इससे आप पाइथन को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा पाइथन का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक वर्जन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और प्रीवियस रिलीज क्या है, लेटेस्ट रिलीज क्या है, कमिंग रिलीज कौन सी है पाइथन की, कितने वर्जन है, सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। डिटेल क्या अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम, वो सब कुछ आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। खैर यहाँ पे मैंने आपको कुछ इसकी लाइब्रेरीज दिखाई हुई है। टॉप वेब डेवलपमेंट पाइथन फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे हैं फ्रेमवर्क। मैंने यहाँ पे टॉप 5 रखे हुए कि वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन को यूज किया जाता है इन फ्रेमवर्क की हेल्प से। पाइथन के फ्रेमवर्क डेटा साइंस में भी है, पाइथन के फ्रेमवर्क इमेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी में भी है। सब अलग अलग तरह के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं जिनको यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग में और जीयूआई सॉफ्टवेयर बनाने हो, सॉफ्टवेयर नेटिव सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हो, सिस्टम के सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आप बना सकते हो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी पाइथन को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में हम पाइथन को आज डेट में यूज कर पा रहे हैं। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में था गाइस। इसके बाद हम लोग जो समझने वाले हैं बेसिकली वो कोर पाइथन है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। सारी चीजें जो रिलेटेड टू कोर पाइथन है और रिक्वायर्ड है, बहुत सारी छोटी बड़ी और भी चीजें यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया हुआ मैंने, बट वो सब हम डिस्कस करेंगे from next lectures. So that's all for this lecture. And if you have any doubt or question, then you can contact directly or you can comment, like and share the video, and also subscribe the channel for more videos, for more updates, for more technologies updates. And thank you so much.